Good morning, class 9th. Today we will do the exercise 2.5 that is based on the algebraic identities. स्टूडेंट, मैंने कल आप लोगों को algebraic identities बताई थी और उनको PDF फॉर्म में भी आपको सेंड किया था और आई होप दैट आप लोगों ने उन आइडेंटिटीज़ को अपने मैथ्स के रजिस्टर में लिख लिया होगा. Now today I will do the exercise based on the algebraic identities. First question number 1, second part. Find the product of x plus 8 into x minus 10. In this question you have to find the value of this product. So in this question I think there is no need to apply any formula. Just by multiplication you find this value. Just open the bracket, x into x, x square, and then x into minus 10, minus 10x, 8 into x plus 8x, 8 into minus 10, minus 80, and this is equal to x square minus 2x minus 80. X square minus 2x minus 80 will be the answer. Now next, fifth part of the same question. Find the product of 3 minus 2x into 3 plus 2x. Student, in this question, in one bracket we have product difference of the two expressions, and in the second bracket we have sum of the two expressions. So here we can apply the formula of a square b square. As we know, a plus b into a minus b equal to a square minus b square. Now we will apply this formula, a square minus b square. So we will get square of the first term minus square of the second term, that is 9 minus 4x square, and this is the answer. Now next come to the next question, that question number 2. So question number 2, second part. In this part, question number 2, second part. Find the product of 95 into 96. In this question you have to find this product. Student, you can find this value just simply by doing the multiplication, but now we will try to solve this problem by applying the algebraic identities. Now whenever we apply the algebraic identity, we try to reduce the number in the multiple of 10. 10 के मल्टीपल में इनको हम जो है लिखेंगे, तो 95 कैन बी रिटन एज 100 minus 5 and 96 can be written as 100 minus 4. तो 100 minus 5 into 100 minus 4, तो multiply 100 into 100, तो this will be 10,000, minus 100 into 4, 400, minus 5 into 100, 500, फिर minus 5 into minus 4, that is plus 20. So you have 10,000 minus 900 plus 20, and you will get 9,120. This is the answer. Next, question number 3, second part. Factorize या find the value of 4y square minus 4y plus 1. You have to find this value by applying the algebraic identities. तो स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म जो है 4y स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं प्लस 1 स्क्वायर, और माइनस 4y को लिख सकते हैं 2 इंटू 2y इंटू 1, क्योंकि जो हम लोग का a प्लस बी होल स्क्वायर
a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, उस फॉर्म में हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम x माइनस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म माइनस 2 times first term into second term, therefore you can apply the formula of x minus y whole square, that is 2y minus 1 whole square. ठीक, तो 4y square minus 4y plus 1 will have two factors, 2y minus 1 and 2y minus 1, that is 2y minus 1 whole square. Now next question is question number 4, second part, 2x minus 1 plus z whole square. Here we will use the formula x plus y plus z whole square equal to x square plus y square plus z square plus 2xy plus 2yz plus 2zx. So now we will apply the formula here. अब यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे फार्मूला तो राइट हैंड साइड में जहां जहां y आ रहा है, y की जगह हम माइनस वाई रखेंगे, क्योंकि यहाँ y का साइन जो है वो निगेटिव है। तो 2x होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2x इंटू माइनस वाई प्लस 2 माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2z इंटू 2x. Square of the 2x will be 4x square माइनस वाई का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा प्लस z स्क्वायर. अब 2x इंटू माइनस वाई, तो देखिए यहाँ पे एक 2 और होगा, क्योंकि 2 टाइम्स 2x इंटू माइनस वाई, तो और ये हो जाएगा माइनस 4xy और 2 इंटू माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2yz एंड 4xz. तो आंसर विल बी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz. ये फाइनल आंसर हो जाएगा. देखिए फार्मूला हमको बेसिक यही याद रखना है, अगर यहाँ पे 2 निगेटिव टर्म है तो जो निगेटिव टर्म है, जैसे z भी अगर निगेटिव है तो राइट हैंड साइड में z की जगह माइनस जेड रख देंगे और बेसिक फार्मूला हम यही अप्लाई करेंगे. जैसे फोर्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर. अब यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे, बस जहां पे y का टर्म आ रहा है तो उसकी जगह माइनस हाफ b रख देंगे. तो ये हो जाएगा 1/4a होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2b होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस हाफ बी. ब्रैकेट आप यूज कर लिया करिए, क्योंकि माइनस का टर्म अगर है तो ब्रैकेट यूज करेंगे तो गलती नहीं होगी. प्लस 2 टाइम्स माइनस 1/2b इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू 1/4a. अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स तो हम ब्रैकेट हटा देंगे. तो पहला टर्म हो जाएगा 1/16a स्क्वायर और ये दूसरा टर्म हो जाएगा 1/4b स्क्वायर और तीसरा टर्म 1 हो जाएगा. फिर जब देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और a इंटू माइनस बी, ये हो जाएगा माइनस ab अपॉन 4. फिर इस टर्म में 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी इंटू 1 माइनस बी, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा a/2. अब इसको और सिंप्लीफाई तो हम कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो हमारा आंसर है वो यही हो जाएगा
1/16 a स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस ab/4 माइनस b प्लस a/2. दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड पार्ट. 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8zx. देखिए यहाँ पे जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे वो 3 टर्म का स्क्वायर है, उसके बाद एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स के टर्म आ रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पे हम 3 टर्म के होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे. ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx. अब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इसको राइट हैंड साइड के फॉर्म में हम चेंज करेंगे. राइट हैंड साइड के फॉर्म में चेंज करने का मतलब क्या है? स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म्स प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स, 2 टाइम्स सेकेंड एंड थर्ड टर्म, 2 टाइम थर्ड एंड फर्स्ट टर्म. तो देखिए अब जब स्क्वायर हम करेंगे तो 2 को अगर स्क्वायर हमें करना है तो √2 जो है √2 का स्क्वायर यूज करेंगे. इसी तरीके से जहां पे 8 है 8 की जगह हम 2√2 का होल स्क्वायर यूज कर सकते हैं, क्योंकि 8 जो है वो 2√2 होल स्क्वायर के बराबर होता है. क्योंकि 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, √2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 इंटू 2 जो है वो 8 हो जाएगा. इसी तरीके से 2 को जो है हम लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड के फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, तभी ये फार्मूला अप्लाई हो पाएगा. तो इस टर्म को हम लिख सकते हैं √2x होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√2z होल स्क्वायर माइनस 2. इसका मतलब जो x और y वाले टर्म में होंगे उनमें इनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, y z वाले टर्म में इनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, z और x वाले टर्म में इनका मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. तो ये जो पहला टर्म है इसको इसमें जो है वो माइनस भी आ रहा है. तो अब देखिए माइनस जो है वो y x और z के टर्म में आ रहा है. इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा x वाला टर्म है वो निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव टर्म्स वहीं पे आ रहे हैं जहां पे x है, और जहां y और z है वहां निगेटिव नहीं है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि y और z तो निगेटिव होंगे नहीं, x निगेटिव होंगे. तो जब x निगेटिव होगा तो इसको माइनस √2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, और फिर ये हो जाएगा हमारा टर्म प्लस 2 इंटू इसको लिखेंगे माइनस √2x इंटू वाई. फिर जो सेकेंड टर्म है उसको लिखेंगे प्लस 2 इंटू वाई इंटू 2√2z, और जो थर्ड टर्म है उसको प्लस 2 इंटू माइनस √2x इंटू 2√2z. अब इसको चेक भी हम कर सकते हैं. देखिए √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू 2 8 और ये माइनस. तो देखिए अब हमारा जो ये एक्सप्रेशन है ये फार्मूले के राइट हैंड साइड के स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया. स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म प्लस स्क्वायर ऑफ द थर्ड टर्म्स प्लस 2 टाइम फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, 2 टाइम सेकेंड एंड थर्ड टर्म, 2 टाइम थर्ड एंड फर्स्ट टर्म. तो अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर. तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है
वो माइनस अंडर रूट 2x प्लस वाई प्लस 2 रूट जेड होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग को एक्सरसाइज 2.5 जो है ये कंप्लीट करनी है और नेक्स्ट टर्म पे हम इसी को ही आगे जो है कंटिन्यू करेंगे।